Huygens says light is a wave and gives us a way to figure out how the wavefronts evolve. A wavefront can be thought of as a set of particles which are oscillating in sync with each other. So if this was, say, for example, light, then according to Huygens, every point on this wavefront acts as a source for secondary waves, and the envelope of these secondary waves, a common tangent to them, represents a new wavefront. This is great, but can it prove the laws of reflection? Say this is a mirror and here is an incoming plane wavefront. Then when the wavefront hits the mirror, the point at which it does that becomes a source for reflected waves. And now a common tangent to all these reflected waves represent the reflected wavefront. So let's see if we can really prove that the reflected wavefront obeys the laws of reflection. So here's our mirror. Let me draw a couple of incident rays of light. Let me bring in my pencil and my ruler as well. Okay, so here's going to be my incident light. Let's say this is one ray. And let me take this somewhere over here to draw a second ray as well. Because I want to draw a wavefront, so I need to draw at least two rays of light. So here's my second ray of light. And these are my incident rays. Now, because I'm using Huygens principle, I have to draw a wavefront. And the way to draw a wavefront, remember, wavefronts are always perpendicular to the incident ray. So to draw a perpendicular line, let me bring in my set square now. So here's my set square. I've already set it to make sure it's perpendicular. I can draw the wavefronts wherever I want, but as you will see, the reason, because for reasons as you will see, I'm going to draw a wavefront over here. This is going to be my incident wavefront. And so this is our incident wavefront. Incident wavefront. I've drawn it dashed so that we don't confuse it with the incident rays. And remember, this is perpendicular to our incident rays. That's the property of our wavefront. All right, so how do we draw now our reflected wavefront? To do that, we need to draw reflected secondary waves. From Huygens principle, then we can draw a common tangent. And since these reflected secondary waves come from the mirror, every single point on the mirror become our Huygens sources. And when the incident wavefront hits the Huygens source, it gets activated and starts giving out secondary waves. For example, right now, this particular Huygens source has been activated and it's going to start giving out secondary waves. And as the wavefront moves forward, more and more secondary waves start getting activated, as you can see, and they start giving out secondary waves. And a common tangent to all these circles represent our reflected wavefront. Now this is great, but how do you draw this on a piece of paper? Well, what's interesting is that we don't need all the circles to draw a tangent. Since we're drawing a tangent from this point, one circle would be enough. And so what we'll do is we'll ignore all the other Huygens sources and we'll only consider this Huygens source and draw one circle, and then we'll draw a tangent from here to there, and that's going to represent our reflected wavefront. So let's go back. All right, now comes the question, how big should I draw that circle? If I had a compass in my hand, how big should that radius be? Because that radius represents the distance traveled by this wave, the reflected wave, in the time the incident wavefront went from here to here. Now would be a good time to actually pause the video and see if you can answer this question yourself. All right, hopefully you're giving this a shot. The way I'm thinking about it is, I know the time for which this secondary wave, the reflected wave, was traveling. It's the same time it took this incident wavefront to go from here to here. And it also has the same speed. The reflected wave has exactly the same speed as the incident wave. So the radius, or the distance traveled by this wave, this reflected wave, should be the same as the distance traveled by the incident wave. And we know the distance traveled by the incident wave is this length. It comes from here to here. So if I had my compass, I would take this much length and then put it over here and take an arc. In fact, I do have my compass. Here's my compass. I'm going to take this much radius and I'm going to bring that compass over here and I'll draw an arc somewhere over here. So here goes. Okay. And what does that arc represent? This represents the reflected wave from this Huygens source. And at the same time, this Huygens source just got activated because now that incident wavefront is over here. And so the wave produced by this source is still a point, which is convenient because now
to draw the reflected wavefront, I have to draw a tangent from this point, or this point wave, to this. And I can directly do that using my ruler. So again, if I bring in my ruler, I'm gonna point this over here. I'm gonna try and make a tangent. So yeah, this is the tangent. And I'm gonna draw dashed line from here to here, and that would represent my reflected wavefront. There you go. So what next? Well, remember, we're trying to prove angle of incidence equals angle of reflection, and we draw those angles with respect to rays of light. So we have the incident ray, which means we have to draw now the reflected ray. And how do we draw the reflected ray? Well, I have the wavefront, and rays are perpendicular to the wavefront. And so I have to draw perpendicular to this. Bring in my set square again. Here I've already set it perpendicular. So I'm gonna draw a ray from here to here. So here we go. This is one ray. And let me draw a second reflected ray. This is going to be my second reflected ray. And there we have it. These are our reflected rays. So we are done with our construction. This is also perpendicular. And so finally now it's time to see if I equals R. And you can pretty much look at the figure and guess that it has to be true. But let's go ahead and prove it anyways. To do that, we have to first drop a normal. So let me go ahead and drop a normal over here. This is the point of incidence. And this angle over here is the angle of incidence I, while this angle becomes the angle of reflection R. So how do we prove? Now we are in the geometry world. And in geometry, we have to always look for some familiar shapes and see what relationship we can find between them. I can see two right angle triangles. And we need to prove I equals R. So maybe you can guess that somehow, if we can figure out what is the relationship between the triangles and these angles, then maybe somehow we can do it using some laws of geometry. I know it's vague, but I really want you to give this a shot. This is the last piece of the puzzle, and I don't want to steal that away from you. So go crazy. Pause the video and give this a shot. Okay, let's do this. Let's first concentrate on the incident triangle. So let me dim this. All right. All right, I'm trying to bring this angle into the triangle, if you know what I mean. Okay, and to do that, I'm going to look at this. This is right angle because the wavefront is always perpendicular to the incident ray. And therefore, this angle becomes, this total becomes 90. This becomes 90 minus I. I'm not going to write that. This becomes 90 minus I. But now if you concentrate on this angle, these two should also be 90 because this is normal. It's perpendicular to the mirror. And therefore, if this is 90 minus I, this should be I. I've brought the angle into the triangle. Okay, similarly, let's now look at the reflected triangle. And again, feel free to pause in between and see if you can try this. Since this angle is R, I know this angle is 90 minus R. And therefore, this angle must be R. That's great. So let me write that. This angle must be R. So I've brought in the angles into the triangle and they look congruent to me. And so maybe they are. So let's see if we can go ahead and prove them. Since they are right angle triangles, we have to prove, we can use RHS postulate. So first of all, I see the hypotenuse to be common. That's great. Then I have one right angle that is also common. Nice. And now I need one more side. Well, look at this side. This side has to be equal to this side. Can you see why? This is the most important thing. Well, remember when we took that arc, that compass, we took the same distance as from here to here because the distance traveled by this wave was exactly equal to the distance traveled by this wave, which is from here to here. And so because the reflected wave has the same speed as the incident wave, these two sides are, they have to be equal. Therefore, these two triangles are happening to be equal. And because they are congruent, these corresponding angles should also be equal to each other. This is the angle opposite to this side, and therefore correspondingly this is the angle opposite to this side. And so I has to be equal to R. Booyah. Victory for Huygens. And so long story short, from Huygens principle, because the reflected wave has the same speed as the incident wave,
That's the reason why we found the two angles to be equal to each other. And now maybe you can stretch this and you can guess that in the refraction, that's not true because the waves don't have the same speed in this different media. And that's why in refraction, the angle of incidence is not equal to the angle of refraction. But that's something we'll talk about in a separate video. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये जो रूल है ये भी हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, इसका प्रूफ है यहाँ पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर क्यों होता है, उसका प्रूफ भी इसमें आएगा भी कि क्यों ऐसा हम हमेशा लेते हैं। रे थ्योरी में तो सीधा हम रूल्स बना के उसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन अभी अपन देखेंगे। तो ये कोई मिरर है, सपोज करो, ऊपर वाली सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, और इसके ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। कौन सा वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन। अब प्लेन वेव फ्रंट की शेप आप जानते हो एकदम प्लेन जैसा होगा, लेकिन सामने से देखोगे तो आपको एक लाइन जैसा दिखेगा वो। तो सपोज करो प्लेन वेव फ्रंट पहले यहाँ पे था, फिर ये आगे बढ़ता गया और इस तरीके से बढ़ता बढ़ता ये आके जाके इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा। तो ये मान लो यहाँ पे इंसिडेंट हो गया ये, ठीक है। ये प्लेन वेव फ्रंट है, इधर से कहीं से आ रहा था और आके यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, इस प्लेन का मिरर के प्लेन के साथ में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे थ्योरी में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको मान रहे थे, नॉर्मल से इंसिडेंट रे ने जो भी एंगल बनाया है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते थे। ये एंगल भी उतना ही होता है, इसको प्रूव करके देख लेते हैं चलो कि ये एंगल वही है क्या। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो गया नॉर्मल इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ करी, रे ऑफ लाइट हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो वेव फ्रंट है इसका जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पे, आया समझ में। तो ये कुछ रे ऑफ लाइट है, ये फर्स्ट रे है, सपोज करो ये सेकंड रे है, और ऐसे बीच में भी और बहुत सारी रेज होंगी। ये हो गए रे ऑफ लाइट। हमने बोला कि ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जबकि होना ये चाहिए रे थ्योरी में, रे थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो ये और ये एंगल सेम ही होते हैं, चेक कर लेते हैं। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, इसका मतलब मिरर की सरफेस से इस लाइन का जो एंगल है टोटल वो कितना है, 90। ये वाला एंगल 90 है। अच्छा ये एंगल 90 है तो ये आई है, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस आई होगा। ये हो गया 90 माइनस आई। और उसके बाद में ये वाली रे ऑफ लाइट और ये वेव फ्रंट, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वाला टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये 90 माइनस आई है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये क्या होगा, आई होगा। तभी तो सब 90 बनेगा ही, आई के बाद समझ में। तो इसका मतलब जो रे ऑफ लाइट है उसने नॉर्मल से जो एंगल बनाया होता है वही एंगल यहाँ पे आप बनेगा, और वही एंगल हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कंसिडर करेंगे। क्योंकि आप वेव फ्रंट की बात कर रहे हो इसलिए रे की तो अपन बात ही नहीं करेंगे अब, ठीक है ना। तो रे थ्योरी हमको अप्लाई नहीं करनी है, इसलिए मैंने वो चीज़ यहाँ से हटा दी अब। तो ये देखो ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ सपोज करो, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर एकदम, वही एंगल है ये, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा वेव फ्रंट अब टकराएगा सरफेस के ऊपर, टकरा के रिफ्लेक्ट होगा और किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए देखो हाइगन ने क्या बोला कि इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स बन जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको ए मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट है सपोज करो बी। तो ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, इनसे कुछ सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होंगी। वैसे तो वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होंगी, लेकिन जब डायग्राम बनाना है तो कम से कम 2 सेकेंडरी वेवलेट्स की हमको रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं और एक यहाँ से। पहले यहाँ पे देखते हैं, ये जो बी पॉइंट है यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होंगी वो आगे ट्रेवल करेंगी। कौन से मीडियम में जा रही है, एयर के अंदर। ये ऊपर एयर है, ठीक है, कोई मीडियम हमने कंसिडर नहीं किया है। और इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते वो मिरर की सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होंगी। इनको पहुंचने में सपोज करो कुछ टी टाइम लगा, तो जो बी से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स हैं ये टी टाइम के अंदर यहाँ पे सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो गई। कितना टाइम लगा इनको, टी टाइम लगा। तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम होगा ये मैंने मान लिया टी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। ये बी पॉइंट पहले यहाँ पे था और ये आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ पे पहुँच गया। तो यहाँ तक पहुँचने में, मतलब इसको बी डैश बोल देते हैं, यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा अगर वो टी है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैं लिख सकता हूँ बी बी डैश जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टाइम के बराबर होगी। भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है, सी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, और टाइम कितना लगा, टी लगा। हाँ, तो जो बी पॉइंट से चलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ध्यान दो इधर, जो बी से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स हैं जब वो बी डैश के ऊपर पहुंचेंगी तो इनको टाइम कितना लगा,
इनको टाइम लगा t, और इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसको आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। ये आ गया अपने पास में c इनटू टी। ठीक है, अब इसी तरीके से a से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स भी आगे ट्रेवल करेंगी। कौन सी डायरेक्शन में इनको ट्रेवल करना है, तो ये कौन सी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है भाई, यहाँ पे मिरर आ गया ना यहाँ पे। तो मिरर से जब एक तरह से कोई भी वेव फ्रंट टकराता है, या कोई भी, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, चलो ये यहाँ पे सोर्स है, तो यहाँ से वेव फ्रंट ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, और यहाँ पे जाके टकराया। टकराने के बाद में क्या होगा, ये उल्टा आएगा, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही एक्टिविटी होगी। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो ए पॉइंट है, इससे जो सेकेंडरी वेवलेट्स चलेंगी, अब देखो मिरर के अंदर तो जा नहीं सकती है, किस में नहीं जा सकती, मिरर के अंदर, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर ट्रेवल किधर करेंगी, ऊपर की तरफ ही ट्रेवल करेंगी। अच्छा, अगर मैं टी टाइम के अंदर ही देखूं कि बी ए से चलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगी, तो अगर मीडियम सेम है और टाइम अगर मैं सेम ले रहा हूँ, तो जितना डिस्टेंस बी से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स ने ट्रेवल करी है, उतनी ही डिस्टेंस ए से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स भी ट्रेवल करेंगी, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या है, सेम है यहाँ पे, क्योंकि मीडियम थोड़ी चेंज हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस टी टाइम के अंदर ए से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स भी ट्रेवल करेंगी। जैसे ए से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स इस तरीके से ट्रेवल करेंगी, ये जा रही है ऐसे, समझ में आया क्या ये। और इस तरीके से ये वाली डिस्टेंस जो होगी ना, मतलब जितना डिस्टेंस ये वाली सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल कर रही है, उतना ही डिस्टेंस ये वाली भी सेम रहेगी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेम टाइम में सेम डिस्टेंस सेकेंडरी वेवलेट्स बी से चलने वाली बी डैश पे पहुंचती है, तब तक ए से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ तक पहुंच गई। अब हाइगन का सेकंड प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और वेव फ्रंट की जो नेक्स्ट पोजीशन है उसको ड्रॉ करेंगे। पहले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम हो गया। पहला प्रिंसिपल ये था कि जो वेव फ्रंट होता है उसका हर एक पॉइंट, ये एक वेव फ्रंट था ए बी, इसका हर एक पॉइंट क्या होगा, एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होंगी। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगी, तो ये तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और ये रिफ्लेक्ट होगी इसलिए इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी। अब सेकंड जो इसका प्रिंसिपल था वो ये था कि इनके ऊपर जो कॉमन टेंजेंशियल सरफेस होगी वो वेव फ्रंट की नेक्स्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब एक्चुअल में ये डायग्राम क्या है, 3 डायमेंशनल है, ये एक प्लेन में नहीं बन रहा। एक्चुअल में ये क्या होगा भाई, वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, पॉइंट सोर्स से बनने वाला, या सेकेंडरी वेवलेट्स भी कैसे होंगी, स्फेरिकल। तो ये एक्चुअल में डायग्राम क्या है, 3 डायमेंशनल है, लेकिन इसमें आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे एज्यूम कर लेना जिससे थोड़ा आसानी हो। जैसे बी पॉइंट अगर बी डैश पे पहुंच गए तो इसके ऊपर ये पॉइंट ले लिया अपन ने, फिर ए से चलने वाला पॉइंट अगर सेकेंडरी वेवलेट्स अगर यहाँ तक पहुंच गई, इस सरफेस तक आ गई, तो इस सरफेस के ऊपर बी डैश पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वो जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो कॉमन टेंजेंशियल सरफेस हम एज्यूम कर लेंगे, और उससे वेव फ्रंट की नेक्स्ट पोजीशन आपको मिल जाएगी। जैसे मैं बी डैश पॉइंट से इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये पॉइंट ले लिया, और ये इसके ऊपर क्या करना है, ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये हो गया टेंजेंट। तो जो वेव फ्रंट है उसकी नेक्स्ट पोजीशन टी टाइम बाद की पोजीशन ये होगी। ए पॉइंट यहाँ पे पहुंच चुका है ए डैश पे, बी पॉइंट जब बी डैश पे पहुंचेगा तो ए पॉइंट कहाँ पे पहुंचा, ए डैश के ऊपर। अब बोलोगे सर ये तो टेंजेंट नहीं दिखाई दे रहा, तो ये मैंने आपको ये बताया ना ये क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट जैसे ये स्फेयर है ऐसा, ठीक है, तो ये जो वेव फ्रंट है इसको जब आप एक स्फेयर यहाँ पे ड्रॉ कर लो ऐसे, और उस स्फेयर से आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो पीछे वाली साइड में ये जाके कहीं पे उसको टच करेगा। अब ये इसमें तो नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे, टेंजेंट कहाँ पे हुआ, तो इसकी पिछ वाली सरफेस मतलब ऐसे जाके यहाँ पे भी तो कहीं टच करेगा नहीं, तो ये टेंजेंट ही है, बस इसको ड्रॉ करना ऐसे है। क्योंकि एक्चुअल में मैंने भी डायग्राम की लिमिटेशन आपको बताई कि इसको 3 डायमेंशन में हम ड्रॉ नहीं कर सकते बोर्ड पे, तो बोर्ड पे तो ऐसे ड्रॉ होगा। बाकी आपको इसको याद रखना है कि जब बी पॉइंट बी डैश पे पहुंचेगा तो ए पॉइंट कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे, और इन पे जो कॉमन टेंजेंशियल सरफेस आप ड्रॉ करोगे वो वेव फ्रंट की नेक्स्ट पोजीशन होगी। कैसे ड्रॉ करना है समझ में आई। फिर आगे कैसे ट्रेवल करेगा वेव फ्रंट, तो ए डैश बी डैश अगली पोजीशन के लिए तो आपको इसके ऊपर सेकेंडरी वेवलेट्स आपको ड्रॉ करनी है, फिर कॉमन टेंजेंशियल सरफेस, तो अगली जो सरफेस आएगी वो तो इसी के पैरेलल यहाँ पे आ जाएगी, फिर अगली सरफेस ऐसे आएगी, तो आगे तो फिर ये उसी तरीके से ट्रेवल करेगा जैसे पहले कर रहा था, इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। जैसे ऐसा आया था और टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे जा रहा है। और रिफ्लेक्ट कैसे हुआ है, एक चीज़ यहाँ पे गौर करो,
ए पॉइंट पहले नीचे था, बी पॉइंट ऊपर था, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या हुआ, बी पॉइंट नीचे चला गया, ए पॉइंट ऊपर चला गया। इसका मतलब जो वेव फ्रंट है वो यहाँ पे उल्टा हो गया। मतलब जैसे मान लो कि ये एक वेव फ्रंट है, सामने से देख रहे हो इसलिए एज दिखाई देगी। ये वेव फ्रंट ऐसा आया, ये वेव फ्रंट ऐसा आएगा, टकराएगा। अब इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये तो आगे जाएगा और ये रिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे ये टकराएगा, टकराने के बाद में देखो ये ऐसे पलटेगा और पलट के फिर आगे जाएगा और इस तरीके से फिर ये आगे ट्रेवल करेगा। समझ रहे हो बात? ये ऐसा आया, टकराया, टकराने के बाद में क्या होगा, ऐसे पलटा और आगे फिर ऐसे ट्रेवल कर गया। तो ये इस रिवर्स हो गया। और रिवर्स होने से होता क्या है कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थ्रू देख रहे हो। जैसे मान लो एक पानी का तालाब है, उसके किनारे पे एक पेड़ खड़ा है। तो जब आप पानी के अंदर उसका रिफ्लेक्शन देखते हो तो रिफ्लेक्शन कैसा दिखता है, सीधा या उल्टा? उल्टा क्यों दिखता है? क्योंकि जो वेव फ्रंट आता है अपनी तरफ, ऐसे ये पेड़ है मान लो, तो वो वेव फ्रंट आएगा, सरफेस पे टकराएगा, टकरा के पलट के आएगा, उल्टा होके आएगा। तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अगर वो ऐसा कैसा था, ऐसा आया, टकराया, टकरा के ऐसा कैसा वापस आ गया, तब सीधी इमेज बन जाती। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज आपको पानी के अंदर उसकी दिखाई देती। उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि वेव फ्रंट रिवर्स हो गया। बात समझ में आ रही है? अब मेन काम पे आते हैं, जो हमको प्रूव करना है कि ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, इसका मिरर की सरफेस के साथ में जो एंगल बनेगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे? अब हमको ये तो पता ही है कि ये जो ए डैश डिस्टेंस है, ये किसके बराबर है, ये बी डैश डिस्टेंस के बराबर है। क्योंकि टी टाइम बाद में हमने ऑब्जर्व किया तो ए पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया था, तो टी टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई, आगे भी बढ़ा देता हूँ इसको, ये रे ऑफ लाइट बन जाएगी आगे, इसके ऊपर भी रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर देंगे। तो ये फर्स्ट रे है, ये ऐसे जाके इधर चली जाएगी, और सेकेंड रो ये रे ये है जो यहाँ पे जाएगी। तो ए डैश डिस्टेंस, ये ए डैश डिस्टेंस ये किसके बराबर है, सी इंटू टी के बराबर ही है। क्योंकि लाइट की स्पीड सेम रहेगी और टी टाइम बाद में आप चेक करोगे तो टी टाइम में ए से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स सी इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए ए डैश पे पहुंचेंगी। तो बी डैश सी इंटू टी है और ए डैश भी सी इंटू टी के बराबर है। दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर। एक और चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये दोनों जो ट्राइंगल यहाँ पे बनेंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखो, एक तो ये वाली साइड्स बराबर हो गई, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, बी डैश और ए डैश बराबर है। दूसरी चीज़ देखो कि इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों 90-90 है। क्योंकि वेव फ्रंट के ऊपर जब आप रे ऑफ लाइट ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। तो ये वेव फ्रंट है, इसके परपेंडिकुलर ये रे ऑफ लाइट ड्रॉ करी, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल है। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब बी और ए डैश, एंगल बी और एंगल ए डैश, ये दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। और एक चीज़ और नोटिस करो कि इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाली साइड ए बी डैश जो कि हाइपोटेनियस है, इन दोनों ट्राइंगल्स का ये कॉमन है दोनों में, है ना। इस वाले ट्राइंगल का भी हाइपोटेनियस यही होगा और इस दूसरे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस भी यही होगा। अब एक चीज़ सोच के बताओ कि अगर किसी भी ट्राइंगल में तीन चीज़ें सेम होती हैं, एक साइड दो एंगल या दो साइड एक एंगल या तीनों साइड्स, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होगा, हर एक चीज़ सेम होगी, मतलब साइड सेम है, एंगल सेम है, एग्जैक्टली कॉपी होंगे एक दूसरे के। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव हो गया। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, ये एंगल ये इस एंगल के बराबर है, और ये वाली साइड दोनों में कॉमन। तो मतलब दो साइड्स और एक एंगल इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सेम है, तो ये क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में हर एक चीज़ सेम होती है, मतलब ये वाला एंगल जो बनेगा ये इस एंगल के बराबर होगा। ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसमें ये बड़े वाला एंगल है आई, और इस वाले ट्राइंगल में दूसरे वाले में ये बड़े वाला एंगल है आर, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। फिर इस ट्राइंगल के अंदर ये जो ट्राइंगल है, इसमें ये जो छोटे वाला एंगल है, ये जितना होगा उतना ही एंगल इस दूसरे वाले ट्राइंगल में ये छोटे वाला एंगल होगा। तो ये इनसे तो अपन को मतलब नहीं है, हमको तो आई और आर से मतलब था। तो आई और आर यहाँ पे क्या हो गए, इक्वल प्रूव हो गए, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्शन का रूल है जो हम रे थ्योरी में यूज करते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे उसका प्रूफ है ये। अब आप देख सकते हो कि डायग्राम कितना इजी बना है, इसलिए हम ये थ्योरी यूज नहीं करते। हम कौन सी थ्योरी यूज करते हैं रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए, रे थ्योरी, कि रे आई ऐसे टकरा के रिफ्लेक्ट होके चलेगी बस।